Okay, good afternoon. आप सभी को शुभ दोपहर। I hope that you are enjoying this subject about the local church. और आप लोग को बड़ा मजा आ रहा होगा स्थानीय कलीसिया के बारे में पढ़ने के पर। Are you finding it helpful, interesting? क्या आप लोग को इस ये बात में मजा आ रहा है, आपको सीखने के लिए और कुछ नई बातें आपको मिल रही है? Okay, good. So today let's continue with chapter 5. अब हम 5वें अध्याय की ओर जाएंगे, उसको देखेंगे। Before we go into it, can somebody pray? और शुरुआत करने के पहले कोई एक जन प्रार्थना कर सकते हैं? Where is the mic, please? At the back. Okay, then somebody who's at the back, maybe Brother Biju, could you please pray today? भाई बिजू प्रार्थना करने में अगुवाई करें। Our gracious Heavenly Father, we thank and praise God for this wonderful time, O Master. Hallelujah. Thank you for bringing us together in this fashion, O Master. Hallelujah. We commit and submit all the hallelujah study lessons that we are going to learn today. Hallelujah. We're going to learn about the local church. Hallelujah. We understood yesterday that you have the blueprint of that church, O Master. Hallelujah. Thank you for hallelujah, bringing hallelujah, Pastor Nancy in our midst. Hallelujah. Be with her. Give the wisdom to hallelujah, teach us, O Lord Master. We commit and submit all the sessions in thy hands. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' mighty name we pray. आमीन। Amen. Amen. Okay, so it's really wonderful to know that the church is God's plan. और ये बहुत ही हमारे लिए अद्भुत और अच्छी बात है कि ये जो कलीसिया है वो परमेश्वर की ओर से है। Okay, and we have seen how a pastor should lead. और हमने देखा कि किस प्रकार एक पासबान उसकी अगुवाई करना चाहिए। And we have seen that every church will go through stages of growth. और अलग अलग हमने स्तर को देखा कलीसिया को बढ़ने के लिए। Today we will talk about what is it that makes a strong church. और एक मजबूत स्थानीय कलीसिया कैसे बनती है उस विषय पर हम देखने पाएंगे। According to God, what is a strong church? परमेश्वर के अनुसार हम देखते हैं कि क्या कौन सी ऐसी चीज है जो मजबूत कलीसिया है। So is a beautiful building a strong church? क्या एक बड़ा एक भवन वो एक मजबूत कलीसिया है? Is having lots of money, resources a strong church? और क्या बहुत आर्थिक पैसा होना और स्रोत लोगों के द्वारा जो स्रोतों को प्राप्त करना, ये मजबूत कलीसिया है? So according to God, there are certain things that make a church strong. और परमेश्वर के उस इच्छा के अनुसार वो उनका उस परमेश्वर की जो सोच है कि एक मजबूत कलीसिया कैसे होना चाहिए। Okay, so here are some things that make a church strong. और यहाँ पर हम उस कुछ बातों को देखने पाएंगे एक मजबूत कलीसिया के बारे में। So the first thing is strong leadership. सबसे पहली बात कि एक मजबूत अगुवाई होना। And the leadership should have a God-given vision. और वो उन अगुवों को जो नेतृत्व करने के लिए उन्हें परमेश्वर द्वारा दर्शन को प्राप्त करना होगा। So without a vision, it is very difficult to plant and lead a church. बिना दर्शन के एक कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही बाधा को हम देखने पाते हैं। So when the leaders have a strong vision, they can lead people and people can follow them. एक अगुवा के पास एक मजबूत दर्शन होगा तो क्या करेगा, वो लोगों की अगुवाई करने में उसकी मदद होगी। And the pastor, he shares the vision with the church and the whole church community walks with that vision. और पासबान की जिम्मेदारी ये होगी कि वो सारी कलीसिया के लोगों को वो दर्शन को बताए ताकि उस दर्शन में लोगों की अगुवाई कर सके। Along with this, the leadership should have courage. और साथ साथ में क्या होना चाहिए, जो अगुवे को करेज होना चाहिए। And the leadership should have the ability to endure or persevere or continue even when it's taking long. और ये जो प्रक्रिया थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन क्या करना है, अनुशासन में, अगुवाई में और उत्साह में उन्हें आगे बढ़ाने का बहुत जरूरी है। And
the leadership should also carry discipline, because it's very difficult, without discipline to lead so many people. और ये बहुत ही जरूरी है अगुवाई करने में अनुशासन की। और अनुशासन ऐसा चीज है कि लोगों को बढ़ाने में बहुत उसमें दुविधाएं होती है, तकलीफ उठाना पड़ता है। So the way the leaders are, the mindset of the leaders, all of this will affect the church. और इस प्रकार के जो मन में बातें रहती है वो कई बार उस कलीसिया को वो प्रभावित भी करती है। So Satan knows that if he can affect the leader, the whole church will be affected. और शैतान इस बात को जानता है, अगर अगुवे के मन को विचलित कर दिया जाए, उसको मालूम है कलीसिया में उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। So in Zechariah chapter 13 and verse 7, it says, strike the shepherd and the sheep will be scattered. और जकरिया उसकी पुस्तक उसका 13 अध्याय 7 पद में लिखा है कि वो क्या अगर गलत रीति से अगुवे की अगुवाई किए तो लोगों को विनाश की ओर लेके जाती है। Okay, so when a leader is a good leader, he will lead the people into blessings and prosperity. अगर अगुवा अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, तो वो अगुवाई करता है लोगों के लिए, लोगों के जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए। But if the leader is not good, then he will lead the people to destruction. अगर मान लीजिए अगुवा सही नहीं है और सही अगुवाई नहीं कर रहा है, वो लोगों को भटका सकता है। So a strong leadership is important for a strong church. और एक मजबूत कलीसिया को बनाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। Now, the other thing that makes a church strong is a balance between the word of God and the work of the Holy Spirit. दूसरी जो बात है कलीसिया को जो मजबूती प्रदान करती है, वो है परमेश्वर के वचन और आत्मा पर संतुलित जोर को देना। So, sometimes we can become very much word, only word. कई बार क्या होता है, केवल वचन की बातों को ही बोलते हैं। But we may neglect the works of the Holy Spirit. कई बार हम पवित्र आत्मा के कामों को नकार देते हैं। But in in another way, what people do is they go after the manifestation of the gifts of the Spirit, but there is no foundation of the Word of God. कई बार क्या होता है, लोग पवित्र आत्मा के कार्यों पर भरोसा करते हैं, पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार कि वो परमेश्वर के वचन को भूल जाते या वचन से हट जाते या ध्यान नहीं देते। So we need a balance. इसलिए हमें संतुलन की आवश्यकता है। We need the word, हमें वचन भी चाहिए we need the work of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के कार्य को भी होना So जरूरी है। when there is a balance in the church will be strong. और अगर कलीसिया में इस प्रकार का संतुलित बात होगी तो कलीसिया मजबूत होने पाएगी। So when we teach the word, what are some areas on which we must focus? और हमें कौन सी ऐसी बातों पर ध्यान देना है जो कलीसिया को मजबूत करने के लिए? First is evangelism. पहला जो है सुसमाचार प्रचार। So when we proclaim, we have to teach people that they have to go and share Christ with others. अगर हमें सुसमाचार की घोषणा करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें लोगों को सिखाना होगा ताकि सुसमाचार दूसरे जगह तक, दूर तक पहुंच सके। The next important topic is discipleship. दूसरा जो मजबूत करने वाली बात है वो शिष्यता या चेले बनाना। So once a person is born again, they need to know what kind of life is a godly life. अगर एक व्यक्ति ने नया जन्म पा लिया है, उसे इस बात को ध्यान देना या देखना है कि एक पर ईश्वरीय जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए। So in the church we have to teach what is discipleship. और हमें कलीसिया में सिखाने की आवश्यकता है कि एक शिष्यता या चेलापन क्या है। And we also have to develop the church in the aspects of praise and worship. और साथ साथ कलीसिया को मजबूत करने के लिए जो अगली बात है वो है प्रार्थना और आराधना। So when we grow in praise and worship, it creates an atmosphere for miracles. और जब प्रार्थना और आराधना में हम जब बढ़ते हैं और वो उस बात को उत्पन्न करती है, देखने पाते ये है कि आश्चर्य कर्म और अद्भुत कामों को। And the next important subject to talk about is fellowship. और दूसरा जो अगले जो विषय को हमें सिखाना जरूरी है वो है सहभागिता। So how to live with other brothers and sisters, in a godly way. और कैसे एक ईश्वर तो परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ व्यवहार करना, उनके साथ जीवन को जीना। And
another subject which we must teach is equipping the people for ministry. और हमें ये भी बात को सिखाना है सेवकाई के लिए लोगों को सुसज्जित या तैयार कैसे करना So चाहिए, people must know how to manifest the gifts of the Holy Spirit. और ताकि वो समझ सके, बात को पहचान सके पवित्र आत्मा के वरदानों के कामों को भी। So here, Pastor has shared how he prepares himself to share the word with the church. और यहाँ पर पासवान ने इस बात को सीखा है और कि कैसे लोगों के साथ वचन सुनाकर उनको मजबूत करना है। See, we've already seen the areas that we should focus on when और- we are preaching. और हमने इस बात को सीखा है प्रचार में कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर हमें उसे उपयोग करना है। Okay, so when there is preparation for Sunday service, जब हम रविवार की आराधना की जब तैयारी करते हैं throughout the year, Pastor tries to focus on 3 subjects. और पासबान जो कलीसिया के पासबान 3 क्षेत्रों में तीन क्षेत्र जो है उस पर ध्यान करते हैं शिक्षा को देने के लिए। So you, in the English book on page 53, you can see like a house. और हिंदी बुक में भी 55 पेज पर दिया गया है, वहां पर एक घर का चित्र बनाया गया है, उसमें बात को देख सकते हैं। There are 3 areas to address. यहाँ पर 3 जो क्षेत्र है जिसको हमें उसको बताना है। So the topics will be within these 3 areas. और जो भी विषय है ये 3 क्षेत्रों में होकर होना चाहिए। So the first one is Christian life. पहला जो है मसीही जीवन, How to live life as a believer. कैसे एक विश्वासी होने के नाते एक मसीह जीवन को व्यतीत करना चाहिए। The second one is life skills. और दूसरी जो बात है जीवन की कौशलता। So when you say Christian life, it means faith, prayer, believer's authority, all these things. और मसीह जीवन के बारे में जब हम देखते हैं तो उसमें वहां पर विश्वास, अधिकार मसीह के द्वारा, परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना और अनुशासन के बारे में। Life skill means practical stuff like how to be a believer in the workplace. और जीवन कौशल के बारे में वो इस बात को यहाँ पर जो प्रायोगिक चीज है कि कैसे हम अपने कार्य क्षेत्र में जहां भी हमें उसको कैसे उपयोग में लाना चाहिए। What kind of decision should we make in business? और कैसे हमें अपने जो बिजनेस काम में हमारे जो धंधा है बिजनेस काम है क्या क्या निर्णय को लेना चाहिए। How should we be in the marriage? कैसे हमारा वैवाहिक जीवन होना चाहिए। These are all practical things. ये जो एक प्रायोगिक बातें हैं And it comes under life skills. और ये जो जीवन कौशलता या उसके शैली के अंदर आता है। Okay, even handling finances. और साथ में आर्थिक बातों को कैसे उसको देखरेख करना या उसके साथ व्यवहार करना See, है। because as believers we can know everything about faith and believers authority, but if we don't know how to handle money, अगर विश्वासी अपने विश्वास के अधिकार के बारे में, विश्वास जीवन कैसे जीना उसके बारे में अगर जानता है, अगर पैसों के साथ पैसों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसे करना चाहिए, अगर वो नहीं जानता है तो yeah. So there has to be a focus on all these subjects. उन्हें क्या करना है और हमें क्या करना है कि इन सारे विषयों को ध्यान देना है, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। And the third one is ministry. तीसरा जो है सेवकाई। So this is all the topics that teach people how to do ministry. और ये बातें सिखाती है कि कैसे सेवकाई को एक दूसरे के साथ मिलकर करना है। So when we take topics under these themes, we can adequately or well develop the people in their spiritual walk. और जब हम तीनों बातों को तैयार करते हैं या तैयारी के लोगों को सिखाते हैं तो क्या होता है कि अच्छी रीति से लोग बढ़ोतरी को जीवन के अंदर पाते हैं। So what we have learned from Pastor is in the beginning of the year, he will give the subjects for the whole year. और For the whole year, like in December, January, we will get the pulpit themes. पास्टर क्या करते हैं कि पूरे साल भर का तैयार करते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक किन किन विषयों पर बातचीत करना या उनको सिखाना। Sometimes what happens is, preachers may want to decide in the morning when they want to share by 10 o'clock. कई बार क्या होता है कि अगुवे क्या करते हैं कि मान लीजिए आज प्रचार करना है तो उसके सुबह उसकी तैयारी करते हैं उसको बताने के लिए। But
if we do it like that, we will not be able to see whether we are focusing on all these areas. अगर इस प्रकार करते हैं तो क्या होता है कि इस बात को ध्यान देना भूल जाते हैं कि जो लक्ष्य है, जो बताना है, सिखाना है, उसको भूल जाते हैं और उसे कर नहीं पाते हैं। So if you want to develop the people and their spiritual, their spiritual development, we must plan this ahead of time. अगर लोग विश्वास में बढ़ोतरी को, आत्मिक बढ़ोतरी को करना चाहते हैं तो हमें ये 3 क्षेत्र है, इस स्तर पर हमें तैयार करना होगा और उसको बढ़ाने के लिए। So we may ask the question, how can we know what we have to preach in December? और कैसे हमें प्रचार करना है, किस विषय पर बोलना है दिसंबर महीने में। So the Bible says that God knows the end from the beginning. और वो परमेश्वर वो शुरुआत और अंत को जानता है। He knows the end वो- from the beginning. और वो अंत से लेकर वो शुरुआत तक बातों को जानता है। So since God knows everything, we can pray and we can ask God, please tell us what is it that we should be focusing on in the month of September, October, November, December. और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि मुझे किस विषय पर वचन की शिक्षा देना है, मजबूत करना है, सितंबर महीने में, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर तक की बात महीनों में। So God gives an idea for the whole year. परमेश्वर आपको पूरे वर्ष का एक तरीका को आपको बताएगा, Then the sermons can be prepared accordingly. उसके अनुसार आप संदेश को तैयार करने पाए। And, in our church, now we also use media a lot. और हम अपनी कलीसिया में बहुत सारे मीडिया के तरीकों को हम अपनाते हैं। So what happens is the topics are given much ahead of time. और जो विषय दिया जाता है कुछ समय पहले उस विषय की तैयारी के लिए। So we get a calendar, like 3 months before we know who's preaching, which location, what topic. So it's easy for the media team. They'll prepare the graphics. और 3 महीने पहले उस विषय के बारे में हमें मिल जाता है मीडिया के माध्यम से कि किस विषय पर हमें चर्चा करना या किस विषय को सिखाना है। And the worship team also gets ready. Okay, this is the theme. These are the songs. और इसी प्रकार आराधना करने वाले आराधना टीम भी उसी प्रकार तैयार करती है जिस प्रकार जो विषय दिया गया है। So this has to be spirit led. और ये एक जो एक आत्मिक क्षेत्र है। Okay, so what have we learned till now? अभी तक हमने क्या सीखा? What did we learn till now? अभी तक हमने क्या सीखा? Yes, so for a strong church, you need strong leaders with godly vision. What else do we need? एक कलीसिया को मजबूत करना है तो दर्शक को- Fellowship, okay. What else do we need? और क्या? We need a balanced word and spirit. Very good. Yes, we need that. What else do we need? वचन और आत्मा का संतुलन और क्या सीखा? To be prepared, right? Prepared to focus on certain areas: Christian life, life skills, and ministry. और हमें उन क्षेत्रों के बारे में सीखना है जो है मसीह जीवन कौशल और सेवकाई के बारे So में। if you are going to be a pastor, then consider these areas to teach your people. आप जब एक पासबान होने के लिए जब जाते हैं तो आप इन बातों को ध्यान रखना, ये 3 जो क्षेत्र है उस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। Okay, the next important thing is to have the people with one heart, one mind. और दूसरा जो बात है कि लोग एक मन और एक चित्त के होना है। So that means that people have to work together. इसका मतलब ये है कि लोग एक साथ मिलकर काम करना है। We need to teach them about kingdom mindset. और हमें लोगों का सिखाना है परमेश्वर के राज्य पर केंद्रित होना। So as a pastor, we have to always ensure that there is unity in the church. और पासवान होने के नाते इस बात को याद रखना है कि कलीसिया में हमेशा एकता बरकरार रखना है। Because if some groups, they start to create division, the strong church may fall. और कई बार क्या होता है कि कलीसिया में मतभेद की बातें आती है जिसके कारण विभाजन हो जाता है, टूट जाता है, कलीसिया भाग हो जाती है। So whenever we see such things happening, quickly we have to identify, quickly we have to resolve it. अगर कोई ऐसी मतभेद की बातों को कलीसिया के बीच में अगर देखा जाता है, तुरंत उस पर कार्य करना है या उसे रोकने का प्रयास करना है। I've heard pastors say that even
sleeping through the night is not enough. Problem comes now, solve now. और अगर समस्या, पासवान कहते हैं अगर समस्या आती तुरंत आती है, उसका तुरंत समाधान होना चाहिए, रात भर उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। So when we are alert like that, we can maintain unity in the church. और इस प्रकार हम सतर्क होंगे, कलीसिया में एकता को हम बरकरार रख सकते So हैं। this is from the people's side. और ये लोगों की तरफ की बात है। Now, if the pastor's heart is not right, even then the church will not be united. और अगर पासवान या अगुवे का वो हृदय संतुलित नहीं होगा तो कलीसिया में वो बातें नहीं हो पाएगी। So if the pastor tries to manipulate, if the pastor tries to, do things that are not correct, that will also cause division and the church will be अगर destroyed. पासवान या अगुवा और जो बातें हो रही है उसको ध्यान न दे, उसको सही न करे, और वो भी एक विभाजन का कार्य का काम हो सकता है या So, विभाजन हो सकता है। As pastors and leaders, we have to manage ourselves rightly before God. क्या करना है? एक अगुवे को और लोगों को परमेश्वर के सामने अपने आप को संतुलित करना है, परमेश्वर के सामने एक सही दिशा में ले आने के लिए अपने आप को बनाए रखना है। Okay, so till now what we said is unity is important for a strong church. एक मजबूत कलीसिया के लिए एकता की आवश्यकता है। The next important thing is to equip people and release them. और कलीसिया को मजबूत करने वाली बात यह है कि लोग को तैयार करना और उन्हें भेजना। So when people come to church, our responsibility is to help them grow up. जब लोग कलीसिया में आते हैं, हमारी जिम्मेदारी ये है कि उनको बढ़ावा देना, बढ़ने के लिए तैयार करना। Okay, spiritually grow up. आत्मिक तौर से। So imagine if there are lots and lots of people in church. और मान लीजिए, ध्यान उन बातों दीजिए कि अगर बहुत सारे लोग जब कलीसिया में पाए जाते हैं, But if spiritually they are babies, it becomes a spiritual nursery. अगर एक आत्मिक जिस प्रकार बच्चों का पालन पोषण करता है, अगर उसी रीति से बढ़ाएंगे, वो बच्चा बन के ही रहेंगे और बच्चा का स्वभाव उनके अंदर रहेगा। So we can have hundreds and thousands of people, but if they are not maturing in God, all of them are babies spiritually. अगर हजारों की संख्या में वहां पर लोग हैं, अगर उनको आत्मिक तौर से हम उनको सेवा नहीं देंगे, वो आत्मिक बालक बने ही रहेंगे, क्योंकि हम उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे। But in a strong church, people will keep going to the next level in their spiritual अगर journey. एक स्थानीय अगर कलीसिया को मजबूत करना है और मजबूत होना है, तो एक स्तर से दूसरे स्तर तक उन्हें ले जाने की आवश्यकता है। So when all are growing spiritually, that makes for a strong church. और सभी लोग मिलकर आत्मिकता में बढ़ रहे, आत्मिक बढ़ोतरी पा रहे हैं, तो कलीसिया मजबूत होगी। There is a picture on page 56 English book. और हिंदी पुस्तक में 59 पेज में एक चित्र दिया गया है वहां पर। So it says that a new believer should be taught to become a disciple. और एक नया विश्वासी को शिष्य बनने की शिक्षा को प्राप्त करना है। A disciple should be trained to become a minister of God. और एक शिष्य को क्या सिखाना है? एक अच्छा सेवक बनने के लिए। And a minister of God should be trained to be a good leader. और सेवक को क्या सिखाना है कि एक अच्छा अगुवा कैसा बनना है। For many of us, we look at people getting saved and we are so excited. और हम लोगों को देखते हैं जो नया जन्म पाए, बहुत ही उत्साहित होते हुए उनको देखते हैं। So it is a great thing to have salvation. और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग उद्धार को पाना है, But it is only the beginning. ये शुरुआती है। So just because a lot of people are born again, we must not stop there. अगर जो बहुत से लोग जब उद्धार पाते हैं, नया जन्म प्राप्त करते हैं, वहां पर हमें रुकना नहीं है। We have to help them grow and mature. हम उनकी सहायता करना है परिपक्व होने के लिए। New believer to disciple, नए विश्वासी शिष्य बनने के लिए, new disciple to a minister, शिष्य एक अच्छा सेवक बनने के लिए, minister to a leader. और एक सेवक एक अच्छा अगुवा बनने के लिए। So this is the role of the church. और ये है कलीसिया को बढ़ने का तरीका। So when people are growing, that makes for a strong और church. इस प्रकार अगर लोग बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो कलीसिया मजबूत है। The next important thing is for the church to be relevant to the world.
और अगला जो कलीसिया ऐसी कलीसिया जो संसार के लिए उपयुक्त है, जिसमें वो रहती है। So, Paul says that for different kinds of people, I became like them to share the gospel. और अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो सुसमाचार को फैलाते हैं, सुसमाचार को बताते हैं। So, in the same way, we must use a relevant language to communicate to people. हमें क्या करना है? सुसमाचार सुनाने के लिए सही शब्दों का समाज में जहाँ लोग रहते हैं उनसे व्यवहार करने के लिए, उनको बताने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। Okay, so but it doesn't mean that just for us to be relevant we must compromise. इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग उस प्रकार के हैं तो उनके साथ हम समझौता कर ले। Okay, so we have to be relevant and yet not compromising. हाँ, हम संसार में लोगों के साथ रहना है, उनके बीच में रहना है, लेकिन हमें किसी बात से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। All right, so this makes for a strong church. और ये बातें हमें कलीसिया को मजबूत बनाती है। The next important thing is to raise up leaders. अगला जो बिंदु है, अगुओं को तैयार करना कलीसिया को मजबूत करने के लिए। In Paul's ministry, he raised up many leaders. और पौलुस ने कई अगुओं को तैयार किया सेवकाई में। Now, when we want to raise leaders, sometimes we feel insecure. कई बार हम अगुए को तैयार करते हैं, हम अपने आप में असुरक्षित महसूस करते हैं। Because if the leaders become better than us, then what about our ministry? क्या होता है कि अगर वो जिस अगुए को तैयार किए, अगर वो हमसे अच्छा हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा, हमसे वरदान पाया हुआ बन जाएगा, तो क्या होगा? सोचते हैं कि मैं उपयोगी नहीं होगा या मेरे लिए वो लाभ नहीं होगा। See, but this way of thinking will stop you from raising up leaders. अगर ये बातें आपके मनों में अगर आती है, अगुए को तैयार करने में रोकती है। Okay, and the church will become weak. और कलीसिया कमजोर हो जाएगी। So we need many leaders for a strong church. और एक मजबूत कलीसिया के लिए अच्छे अगुए होने की आवश्यकता है, उन्हें तैयार करना है। It's not easy to raise leaders. और ये आसान तरीका नहीं है अगुओं को तैयार करने में। We have to work with people for many years. हमें लोगों के साथ कई वर्षों तक काम करना होता है। Encourage them. उनको प्रोत्साहन करना, Correct them when they make mistakes. जब वो गलती करते हैं उनको सुधारना। Be very patient. और हमें उसके लिए नम्र होना होगा। So in this way, a senior pastor can develop leaders under him. और इस प्रकार जो अनुभवी अगुआ है वो अपने आप को मजबूत करेगा और मजबूती वो प्राप्त करेगा अगुओं को तैयार करने में। See, in this room there are some pillars, right? और हम इस कमरे में देखते हैं बहुत से कुछ खंबे हैं यहाँ पर। Without the pillars, I'm sure the building will become weak. अगर खंबे नहीं होंगे तो क्या होगा? वो भवन कमजोर हो जाएगा। Even in a church, the number of leaders are pillars. और इसी प्रकार कलीसिया में अलग अलग अगुए Like जो खंभ के समान है, they give strength to the church. और वो कलीसिया को मजबूत बनाते हैं। Imagine if there is only one pillar. अब उदाहरण के लिए अगर उस भवन का एक ही खंबा है, एक ही पिलर है, What's the maximum you can do on it? क्या होगा? You can only maybe, hoist a flag. और केवल आप अकेले क्या करेंगे? वो खंबे में झंडा फहराते रहेंगे। So if a pastor is alone, it's like that, like a flag. He's just waving himself. और जिस प्रकार एक झंडा हिलता है, वो अगुआ भी उसी प्रकार है When he does not have leaders. जब उसके पास अगुए नहीं So होते। we should never find ourselves in that position. और हमें उस स्थिति में नहीं पहुंचना है। From a young age, start to develop people as leaders. और हम जवान होने के नाते अभी से अगुओं को तैयार करने के लिए हम प्रोत्साहन करें और प्रोत्साहित हो। Another important thing for a strong church is continuity. और एक मजबूत कलीसिया होने के लिए निरंतरता स्थापित करना होना आवश्यक है। निरंतर बनी रहनी चाहिए। Pastor writes here that he works with people who are 20-30 years younger than him. He works with people who are 20 to 30 years younger than him. हाँ, पर में जो हम पासवान हैं और जो ऐसे उनसे 23 साल 24 साल छोटे उम्र के लोगों के साथ वो काम करते हैं। Because when they are developed, even when the older generation is not there, the younger generation is ready. और कई बार क्या होता है कि जो नवयुवक उसके लिए तैयार नहीं हो पाते,
लेकिन उसमें हम देखते हैं जो परिपक्व है वो अपनी तैयारी को बरकरार रखते हैं। Okay, so in this way, you can have a successor and succession. और अगर इस प्रकार हम बनाए रखते हैं, हम सफलता की ओर बढ़ते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं। So in the book of Judges, न्यायों की पुस्तक, there is a very sad passage. और वहां पर एक जो वचन जो आया थोड़ा सा उसमें एक बुरा बात दिया हुआ है। Judges chapter 2 verses 7 to 11. और जो कि न्याय की पुस्तक 2 अध्याय 7 से 11 पद को हम पढ़ते हैं। So basically it says that after Joshua, his generation, the younger people did not know God or the ways of God. और यहाँ पर देखते हैं कि यहोशू के कार्यकाल के बाद वहां पर जो पीढ़ी जो आई वो ना तो परमेश्वर को जानते थे ना परमेश्वर की सेवा करते थे। Can you imagine Joshua and his people saw so many miracles? और हम देखते हैं देखने पाते हैं कि यहोशू और उसके साथ लोगों ने बड़े अद्भुत कामों को, आश्चर्य कर्मों को किए। Joshua defeated so many giants to occupy the land. और यहोशू ने उस लड़ाई को लड़ा जहां पर ऐसे जो सूरवीर लोग थे जिन्होंने जमीन और स्थान को कब्जा करके रखे हुए थे। So God did miracles in that generation. और उस पीढ़ी में परमेश्वर ने अद्भुत का आश्चर्य कर्म किए। But their children did not know about God. लेकिन यहाँ पर देखते हैं उनके बाद पीढ़ी जो आए वो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। How can that be? कैसे वो हुआ? Because just the previous generation, God has done miracles. क्योंकि पहली जो पीढ़ी थी उनके साथ परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को किया। Maybe the older generation did not invest in the younger generation. हो सकता है ये जो पहली पीढ़ी थी उन्होंने उनके लिए उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया होगा या उन्होंने सिखाने में उनकी कमजोरी हुई होगी। Same thing should not happen in our churches. और ये इसी प्रकार हमारी कलीसिया में भी पाया जाता है। That there are leaders, good leaders, but once they are gone, there is nobody. और हो सकता है वो अच्छा अगुवा है लेकिन वो चले जाने के बाद हम अच्छे अगुवे को देख नहीं पाते। We have to invest in the younger generation. हम क्या करना है? जो जवान पीढ़ी है, जवान अगुवों के लिए हमें निवेश करने की आवश्यकता है। Okay, so all of these things will make a strong church. और ये सारी बातें कलीसिया को मजबूत बनाने के लिए उपयोगी होता है। If you have any questions, you can always ask. और अगर आपके पास कोई प्रश्न है हमेशा आप पूछ सकते हैं। Okay, because it's related to church, I know all of us are understanding. और ये कलीसिया से संबंधित है, मैं विश्वास करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। कोई प्रश्न है? Okay, so I'll expect questions later. और मैं विश्वास करती हूँ कि बाद में प्रश्न आपकी ओर से मिलेगा। Let's talk about church growth. अब हम कलीसिया की उन्नति के बारे में बात करेंगे। God wants all of us to be fruitful. परमेश्वर चाहता है कि हम सभी फलवंत हो। So, in John chapter 15, you read about the vine. और वहां पर हम यूहन्ना रचित समाचार 15 अध्याय में हम दाखलता के बारे में देखते हैं। And we read about the branches. और उसके शाखाओं को देखते हैं वहां पर। The branches are connected to the vine. और जो डालियां है वो दाखलता से जुड़ी रहती है, बनी रहती है। And we see that the father goes and prunes those branches so that they can bear fruit. और देखते हैं कि वो पिता जो किसान है उसकी शाखाओं को, उसकी डालियों को काट छांट करता है ताकि वो अधिक फल को लेके आए। You and I are the branches. मैं और आप उसकी डालियां हैं। Jesus and the Father, they want us to be fruitful. और वो यीशु और पिता हमसे चाहता कि हम हमारे अंदर से फल को देख सके। See, God will not put us in a place where we will not be fruitful. और परमेश्वर ऐसी जगह हमें नहीं डालता कि जहां से हमारा जीवन में कोई फल ना हो। God definitely wants us to be fruitful. परमेश्वर चाहता है हमसे कि हमारा जीवन फलवंत हो सके। So in the same way, we must expect fruitfulness in the church. और इसी प्रकार
कलीसिया में भी परमेश्वर चाहता है और हमारी चाह होना चाहिए कि वो बढ़ सके, फलवंत हो सके। So how can a church grow? कैसे एक कलीसिया उन्नति को प्राप्त करती है? There has to be a combination of spiritual and natural efforts. और वहां पर हम एक सहमति को देखते हैं कि Spiritual and natural और एक efforts. प्राकृतिक और आत्मिक बातों को हम देखने पाते हैं। So in this chapter, we have some principles from David Yonggi Cho. और ये यहाँ पर डेविड यंगिचो के द्वारा हम उन सिद्धांतों को देखने पाते जिस प्रकार उसने किया। He had his church in Seoul, Korea is one of the largest in the world. और दक्षिण कोरिया में संसार की एक बड़ी कलीसिया पाई जाती है वहाँ। So he started the church with 5 people. उसने 5 लोगों से कलीसिया का प्रारंभ किया And in 30 years, he had 800,000 people. और 30 वर्षों के अंदर उसने लगभग 800,000. ओके 8 लाखों से भरा हुआ कलीसिया को उसने देखा। And so he has written books about church growth. और उन्होंने कलीसिया के उन्नति के विषय पर पुस्तकों को लिखा। So the first thing we need for our church to grow is a strong vision. सबसे खास बात अगर कलीसिया की उन्नति होना है या बढ़ोतरी होना है तो एक मजबूत दर्शन होने की आवश्यकता है। So we know that God speaks to us in dreams and visions. क्योंकि परमेश्वर हमें स्वप्न में और दर्शन में होकर बातचीत करता है। Vision is a language of the Holy Spirit. और जो दर्शन है वो पवित्र आत्मा की भाषा है। So when God wants to speak to us, He would give us a vision for the church. अगर परमेश्वर हमसे अगर बातचीत करना चाहता है वो हमें दर्शन को देखकर वो बातचीत करता है। So we need a Holy Spirit inspired vision if we want to see the church growing. पवित्र आत्मा के द्वारा वो दर्शन को उज्ज्वलित करने के लिए प्रज्वलित करने के लिए हमें दर्शन की आवश्यकता है। So the first thing for any pastor or leader is strong vision. और चाहे कोई भी अगुवा हो या कोई भी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो उसके पास क्या चाहिए? एक मजबूत दर्शन देखने वाला होना चाहिए। So this pastor David Yonggi Cho, when he had 30 people, he was dreaming of 300 people. और जब पास्टर योंगी चो को देखते हैं जब उनके पास 30 लोग थे उनके अंदर एक दर्शन था कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए और लोगों को उसमें आते प्रभु को प्राप्त करने के लिए। So even when he had like 300 people, he was dreaming of a bigger number, 3,000 people. और उसने 300 लोगों के साथ 3,000 लोगों का दर्शन देखा। So God, when He gives us a vision, our mind is filled with that vision. अगर परमेश्वर हमको वो दर्शन देखता है और हमें उस दर्शन से हमारा मन भरा होना चाहिए। So we are starting the church and God is giving us a vision. There are going to be thousands of people in your church. अगर हम परमेश्वर के उस दर्शन को हम ले ले तो हम अपनी कलीसिया में हजारों सैकड़ों में हम लोगों को देखने पाते So हैं। even when we are discouraged, that vision comes back to us. और अगर हम निराश हो गए उसके बावजूद भी वो दर्शन हमारे पास वापस When we आता are है। feeling weak, the vision comes back to us. और जब हम कमजोर होते हैं वो दर्शन फिर से हमारे मनों में So वापस आता the है vision keeps speaking to us. और वो दर्शन हमसे बार बार बातचीत करता रहता So है। when a pastor or a minister of God has a vision, nothing can stop them. अगर मान लीजिए जिस पासवान के पास दर्शन है उसे कोई रोक नहीं सकता। That is why we have to pray, seek God and ask Him, God, give me a vision for my और church. परमेश्वर की हमें महिमा करना है और परमेश्वर से मांगना है कि वो दर्शन हमको देने पाए। Okay, so the first thing for a growing church is to have a vision that your church is growing. और पहली बात जो है बढ़ने के लिए कलीसिया की उन्नति के लिए वो ये है दर्शन को प्राप्त करना और दर्शन को मांगने की आवश्यकता है। Of course, we have to work hard and cooperate with the Holy Spirit for that vision to come to pass. और हमें उसके लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर से उन दर्शन को हम प्राप्त कर सके। The second thing is we must have a burning desire for a big church. और हमें क्या करना चाहिए? एक कलीसिया की उन्नति के लिए मजबूत प्रज्वलित इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। See, when we have a feeling like, okay, if it happens, if it doesn't, the church will not grow. अगर हम सोचे मन में सोचे ठीक है कलीसिया बढ़ने का हम इस प्रकार हमारे अंदर कोई उमंग नहीं है तो कोई बात नहीं उसके लिए। But this pastor, he writes that you need a burning
desire. और यहाँ पर परमेश्वर का पासवान जो लिखते हैं वो लिखता है, वो कहता है कि हमारे अंदर मजबूत प्रज्वलन या आंख के समान जलना होगा। Okay, so during our days, whenever there used to be all these international cricket matches, they used to have this tagline like "Eat cricket, sleep cricket, walk cricket. Everything is cricket." और जब पहले दिनों में क्या हो जाता है, हम जब ऐसे क्रिकेट के खेल के मैदान की बातों को जब देखते हैं, खेल को महसूस करते हैं, तो वहां पर एडवर्टाइज भी देखते हैं कि हमें खाते सोना, खा के सोना, यानी देखने में देखकर सोना, खा के सोना, और ये इस बातों को हम वहां पर देखने पाते, टैग होता था। Okay, so the point is that everyone is consumed with in this situation cricket. और जब ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोगों का ध्यान क्या होता है, केवल मन में क्या आता है, वही बातें सपने में, दर्शन में देखते हैं क्रिकेट के बारे में। Right? So in the same way, if the people of the world can be so filled with that desire, how much more desire we should have for the church to जब grow. संसार के लोगों के अंदर वो उतनी इच्छा होती है खेल के प्रति, चाहे किसी चीज के प्रति, तो हमारे अंदर उससे कितना उससे बढ़कर होना चाहिए। So when we are a pastor, we should have a deep desire. No, we are not going to give up. We have a deep desire. The church has to grow. एक पासवान होने के नाते हमें हार नहीं मानना, लेकिन हमारे अंदर इच्छा, अथक प्रयास करना, परिश्रम करना, और हमारे अंदर उमंग को बनाए रखना बहुत जरूरी है। Okay, and when we have such a desire, we will pray, we will work hard, sleepless nights, doesn't matter. जब हमारे पास अगर ऐसी इच्छा जागेगी, तो रात दिन प्रार्थना करने में, परिश्रम करने में हम कभी भी अपने आप को हार नहीं मानेंगे, हम बढ़ाते रहेंगे। Okay, so you will really work hard because the desire is burning in your heart. हम उसके लिए क्या करना होगा, उस उमंग को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि वो प्रज्वलित हो सके। The next important thing for a growing church is prayer and worship. अगर एक कलीसिया को अगर उन्नति पाना है, तो क्या करना होगा, लगातार प्रार्थना और आत्मिक युद्ध करते रहना होगा। If we read about any revivals in history, the starting point was prayer. और कोई भी बेदारी को या जागृति को हम देखने पाते हैं, वो प्रारंभ जो हुआ है वो प्रार्थना और आत्मिक युद्ध के द्वारा। So one must pray a lot. One must pray a lot. और हमें क्या करना होगा, ज्यादा अधिक प्रार्थना करते रहना होगा। And it will also require for us to engage in spiritual warfare. और हमें उस ज्यादातर आत्मिक युद्ध में हमें बने रहना होगा। In prayer, you must have learned there are, territorial spirits. So many things are there. But when we pray, God will destroy the evil works. हमने प्रार्थना के विषय में बहुत सी बातों को सीखा है, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं कि जब प्रार्थना हम करते हैं, परमेश्वर उन जो शैतान की जो शक्तियों के गढ़ को ढा देता है या गिरा देता है। So when the church is growing, Satan won't like it. Satan will not like it. शैतान कभी नहीं चाहेगा जब कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही है। Okay, but when we pray, we are fighting Satan. We are fighting all his opposition. और हम प्रार्थना जब करते हैं, तो शैतान के विरुद्ध में खड़े होते हैं उससे लड़ने के लिए। So it's like a battle if you want to grow the church. अगर कलीसिया को बढ़ना है, बढ़ोतरी को पाना है, वो युद्ध का मैदान है, युद्ध का क्षेत्र है। The next important thing is to have very strong faith in God. और अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात वह है मजबूत विश्वास को बनाए रखना। Okay, we must not depend on our feelings. हम केवल हमारी भावनाओं में बने नहीं रहना है। Feelings can change, but faith will stand strong. भावनाएं हमारे बदल जाएगी, लेकिन विश्वास मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। Sometimes we will feel like, why my hard work is not paying off? और My hard work is not useful. और कई बार हम सोचते हैं कि मेरा जो कठिन परिश्रम है, इससे मुझे कोई लाभ नहीं है। God is not blessing me. परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे रहा है। We may get these feelings, ये भावनाएं हमारे अंदर आती है, but feelings are not faith. लेकिन भावनाएं विश्वास नहीं है। But we will stand in faith and say, no, God is helping me. God is increasing me. लेकिन विश्वास में दृढ़ संकल्प लेकर करें कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी मदद करेगा। So when we want to do church work, it's a tough job. और जब हम कलीसिया के निर्माण के कार्य में जब बढ़ते हैं, इसका मतलब ये सरल बात नहीं है,
ये बहुत ही कठिन काम है और बात है। And we must not only believe, but we have to speak what we believe. और हम केवल विश्वास ही नहीं करना, लेकिन बातों को भी विश्वास करना है जो हम बोलते हैं। So we must speak over ourselves and say, I am blessed, this church is blessed, this church is growing. और हमें क्या करना है, इस बात को कहना है कि मेरी कलीसिया बढ़ेगी, मेरे कलीसिया मजबूत होगी, और हम आशीष की वहां पर घोषणा So करना है। even if we face a lot of difficulties, we have to stand strong on the word of God. और चाहे हम कितना भी चुनौती का सामना करें, लेकिन हम विश्वास पे मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना The है। next important thing is to have a strong fellowship with the Holy Spirit. और अगला जो विषय है, पवित्र आत्मा के साथ निकट संगति बनाए रखना। You know, this pastor writes that the Holy Spirit is a partner in church planting, और church building. पास्टर इस बात को लिखते हैं कि पवित्र आत्मा कलीसिया निर्माण करने के लिए सहकर्मी है। So the Holy Spirit will guide us. We will do those things. The church will grow. और पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करेगा कि कलीसिया में सहयोगी बनकर किस प्रकार उस बढ़ोतरी को प्राप्त करे। So developing a close relationship with the Holy Spirit is so important. और बहुत ही महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा के साथ गहरी संगति जब हम करते या बनाते हैं, Develop a partnership with the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा के साथ क्या करें, सहयोगी बनकर हम मजबूत करें। So when we are spending a lot of time with the Holy Spirit, through the Holy Spirit we will get visions. और अब जब हम पवित्र आत्मा के सहयोगी बनते हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम बहुत से दर्शनों को हम प्राप्त करते हैं। Okay, and there are 4 steps that have been shared here. और यहाँ पर 4 कदम के बारे में, 4 चरणों के बारे में बताया गया है। So the Holy Spirit will give us clear things that He wants us to do. और पहली बात जो है कि पवित्र आत्मा हमें स्पष्ट बातों को बताता है कार्य को करने के लिए, Okay, and you know, we have to continue to do it. ताकि हम लगातार उस काम को कर सके। So building a church is not human work. और ये कलीसिया का निर्माण करना ये एक मानव कार्य नहीं है। Okay, so this is the work of human beings in partnership with the Holy Spirit. लेकिन ये कार्य क्या है, जब हम पवित्र आत्मा के सहयोगी जब बन जाते हैं या उसके साथ जुड़ जाते हैं। Okay, so when as pastors we get busy, we don't spend time with God, it's not going to grow the church. अगर मान लीजिए पास्टर व्यस्त है कामों में, अगर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं, वो उपयोगी नहीं होगा। Okay, so we need the fellowship, the partnership with the Holy Spirit. हमें संगति करना है, उसके साथ सहयोगी बनकर आगे बढ़ना है। The next important thing is to demonstrate God's power. और हमें क्या करना, अगला जो है परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन करते हुए क्या करना है, वो जरूरतों को समझना है। So you know, sometimes we can just preach and go away, कई बार हम प्रचार वचन को बोल के चले जाते हैं, but when we also see the power of God bringing healing, miracles, then people's lives are transformed. लेकिन इस बात को समझना है कि परमेश्वर की सामर्थ क्या देगा, चंगाई को लेके आएगा और चंगाई क्षमा को प्रदान करेगा, दुष्ट आत्मा को निकालेगा। इस बात को वहां पर हमें अनुभव करना होगा। Okay, and also not just to preach, but to meet the needs of the people. केवल प्रचार करना ही नहीं, बल्कि वहां लोगों की जरूरतों को समझना पड़ेगा। You know, people have come with a need for spiritual blessing, material blessing. हो सकता है वहां पर लोग जो आ रहे हैं आत्मिक आशीष को पाने के लिए, और जो उनके आर्थिक आशीष को पाने के Or they लिए, have come with a need of healing in their body. हो सकता है उनके शरीर में चंगाई को पाने के लिए। When they experience the power of God, that's when they will grow, the church will grow. जब ऐसे परमेश्वर की सामर्थ का जब वो अनुभव करते हैं, तो क्या होगा, वो भी बढ़ेंगे और कलीसिया की भी बढ़ोतरी होगी। Okay, if you are only preaching the message, they come, listen and go, nothing much will change. अगर केवल वहां पर प्रचार होगा और वचन को वो नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। Okay, with that we'll stop. You can have your break and come back. और यहाँ पर हम रोकते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस मिलेंगे। Thank you.